Now our next topic is multiplexers. What are multiplexers? A combination circuit that selects the binary information from one of the many input lines, that is 2 raised to the power n, and directs to a single output line that is represented as y as shown in the given figure. ये आपका मल्टीप्लेक्सर की एक जेनेरिक ब्लॉक डायग्राम गिवन है आपको, जिसमें 2 रेज़ टू द पावर n के मुताबिक इनपुट लाइंस है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअली m. आपका मल्टीप्लेक्सर होता है m क्रॉस 1 मींस m टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर होता है ये, जहां m का फॉर्मूला स्टिल यही है 2 रेज़ टू द पावर n का. आउटपुट इसकी जैसा कि एज द नेम शोज 1 टू 1 लाइन मक्स है, तो आउटपुट हमेशा इसकी एक ही होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज y. देयर इज वन मोर थिंग ओवर हियर एज कंपेयर टू डिकोडर. एक बात याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर डिकोडर्स एंड योर मल्टीप्लेक्सर्स. डिकोडर में जो भी बाइनरी इनपुट्स पे आती थी, वन ऑफ द आउटपुट पे उसी रिस्पेक्टिव इनपुट के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिल जाती थी. मक्स में क्या है, मक्स में आपके पास एक ही आउटपुट है, ये देखिएगा एक ही आउटपुट लाइन है, आपके पास मल्टीपल इनपुट लाइंस हैं. अब कौन सी इनपुट आउटपुट पे जाए वो सिलेक्ट करती है आपकी सिलेक्शन इनपुट. सिलेक्शन इनपुट इज द इनपुट विच इज इन्वॉल्व्ड इन योर मल्टीप्लेक्सर्स, और ये सिलेक्शन इनपुट हर हाल में मक्स में रहती ही रहती है. ये डिकोडर के इनेबल की तरह नहीं है. ये इनेबल में तो ये होता है ना कि इनेबल हम काउंट नहीं करते इनपुट के अंदर, लेकिन हम उससे एडवांटेज जरूर लेते हैं डिकोडर के अंदर. मक्स के अंदर ये जो सिलेक्शन इनपुट्स हैं, दीज आर एक्चुअली दोज इनपुट्स व्हिच डिसाइड्स which one of your inputs, your data inputs, these are actually known as your data inputs, which of the data input is required to be passed on to the output. These are your selection inputs which decides it. So selection input इसमें बहुत important और main role अदा करती है मक्स के अंदर. It is also known as data selector. इस मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं. और डेटा सेलेक्टर क्यों कहते हैं? The reason is the same. Our selection inputs are involved in our multiplexers, which actually decides which of the data out of these all inputs has to be passed on to your output. That is why it is known as data selector. Selection of the input line is controlled by the selection input lines, that is represented as a small n. This small n is actually ये 2 raised to power n जो लिखा हुआ ना, ये वाला n है ये. Hence we can decide with respect to our data inputs कि हमारी कितनी selection input lines होंगी किसी भी mux की. Mux is a short form of your multiplexer, is useful for choosing from sets of data. For example, memory या register to ALU में ये आपको काम देता है कि आपने कौन सी register से data उठाना या कौन सी memory location से data आगे pass on करना है output पे. This is one of the application of your mux. What you have to remember is this: there are 2 raised to the power n input lines which are known as also data lines. One output line होती है आपके पास, और n, this n is actually this raised to the power वाला n of your input lines is your selection input. Now 2 cross 1 multiplexer. 2 cross 1, as the name implies, that 2 means number of inputs and 1 means number of output. This is the block diagram of your 2 cross 1 multiplexer. 2 inputs होगी, data input lines, that is represented as I0 and I1, and 1 output line होगी, जैसा कि उसका नेम शो कर रहा है 2 cross 1 multiplexer. इसको हम 2 cross 1 multiplexer भी पढ़ सकते हैं, 2 to 1 multiplexer. 2 inputs होगी, 1 output होगी. Now the question is, हमने बोला है कि मक्स के अंदर selection inputs plays the most vital or important role that actually decides which of your data input is going to be passed on to your output. So how we will decide कि कितनी selection input होगी इस block diagram of 2 cross 1 mux की? We have the formula m, हमें मालूम है कितनी inputs हैं, 2 हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना 2 inputs. पहली वाली पोजीशन वाला हमेशा input होता है और बाद वाली पोजीशन में जो डिजिट लिखा होता है वो आउटपुट होता है. m 2 input lines हैं होनी चाहिए, 2 inputs line ही है हमारी,
और हमें पता है m का फॉर्मूला है 2 रेज टू द पावर n का, और ये 2 रेज पावर n में n की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास एक्चुअली 2 इनपुट का जवाब है। अगर n की पावर रेज टू द पावर में 1 पे होगा 2, तो मेरे पास 2 रेज पावर 1 इज इक्वल टू एक्चुअली 2। तो 2 इनपुट्स लाइन रहेंगी जो कि मेरी इस मक्स के अकॉर्डिंगली ही है, इसकी 2 इनपुट्स लाइन ही है। इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि आपकी सिलेक्शन इनपुट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस रेज टू द पावर n। तो इफ 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 इनपुट्स, हेंस माय सिलेक्शन इनपुट इज रेज टू द पावर 1, n is equal to 1 is my selection input। और इस मक्स की कितनी इनपुट आ जाएगी? एक सिलेक्शन इनपुट आ जाएगी, ये सिर्फ एक सिलेक्शन इनपुट आ जाएगी। नाउ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड टेबल, ये वाला टेबल। S stands for the selection input, I0 and I1 are the 2 data inputs and Y is my output। ये टेबल कैसे बना हुआ है अब हम ये देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, my selection inputs decide कि मेरी आउटपुट पे कौन सी डेटा इनपुट में से इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होगी। इनपुट्स कितनी है? I1 एंड I0 2। अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं तो 2 इनपुट्स का मतलब है मेरा ट्रूथ टेबल कितना होना चाहिए था? 2 रेज टू द पावर 2 के अकॉर्डिंगली 4 कॉम्बिनेशंस में होना चाहिए था। ये देखिएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, इतना टेबल हो गया I0 एंड I1 का। अब ये टेबल एक टाइम पे तब है जब मेरे पास सिलेक्शन इनपुट 0 है, क्योंकि मेरे पास सिलेक्शन इनपुट भी इन्वॉल्व है ना। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय सिलेक्शन इनपुट इवन, क्योंकि सिलेक्शन इनपुट भी मैंने आपको बोला है मक्स के साथ साथ ही है, इसका हिसाब डिकोडर के इनेबल वाला नहीं है। ये तो चूज ही करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आगे जाएगी। सो सिलेक्शन इनपुट एक है। अगर एक सिलेक्शन इनपुट है तो सिलेक्शन इनपुट की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ईदर 0 और 1। So when my selection input is 0, मैंने अपने 4 combination of the 2 inputs I0 and I1 कवर कर लिए। नेक्स्ट, जब मेरा सिलेक्शन इनपुट 1 है रेस्ट ऑफ द हाफ टेबल में, तो मेरे पास अगेन वही 4 कॉम्बिनेशंस कवर अप हो गए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि सिलेक्शन इनपुट कॉन्स्टेंटली 1 हो और मेरे पास फिर I0 एंड I1 पे वो 4 कॉम्बिनेशंस अगेन रन हो। तो दिस टेबल इज अकॉर्डिंगली माई 3 इनपुट्स, सिलेक्शन इनपुट, I0 एंड I1। ये देखिएगा 000 से लेके 111 तक। नाउ हाउ माई आउटपुट इज रिसीव्ड, क्वेश्चन इज दिस नाउ, when your selection input is 0, it actually decides कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड हो रही है। When my selection input is 0, जो भी इंफॉर्मेशन 0 बाइनरी बिट है, 0 बाइनरी बिट का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 0। I0 ये लिखा हुआ है इसके सबस्क्रिप्ट में, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट I0 पे जोन सी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आगे आउटपुट पे जाएगी हर हाल में। ये देखिएगा when my selection input is 0, मेरी सिलेक्शन इनपुट 0 है, तो बाइनरी बिट अगर सिलेक्शन इनपुट की 0 है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0, और डेसिमल इक्विवेलेंट दोनों इनपुट में कहाँ लिखा हुआ है? 0, ये लिखा हुआ है I0। तो I0 की जो इंफॉर्मेशन है वही आउटपुट पे एज इट इज रिसीव हो जाएगी। ये देखिएगा I1 रिसीव ही नहीं होगा, I1 पे जो मर्जी आ रहा हो वो रिसीव नहीं होगा, I0 एज इट इज आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा। देन अगर मेरी सिलेक्शन इनपुट की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है सिलेक्शन इनपुट 1, एक ही पिन है ना, एक ही पिन है, तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर 0, इट कुड बी 0 और इट कुड बी 1। अब मेरी सिलेक्शन इनपुट अगर 1 है तो मेरी I1 उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है, I1 की इंफॉर्मेशन आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगी। दिस इज योर कंप्लीट ट्रूथ टेबल ऑफ 2x1 का मार्क्स। इसका कंडेंस ट्रूथ टेबल भी बन सकता है। उसकी रीजन, कॉन्सेप्ट हमारा किस पे बेस है? सिलेक्शन इनपुट पे बेस है। तो सिलेक्शन इनपुट पे बेस करते हुए हम एक शॉर्ट और कंडेंस टेबल भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ राइट हैंड साइड पे बॉटम में शो हुआ है, कंडेंस ट्रूथ टेबल। S stands for your selection input, Y stands for your output as shown in the given figure. If your selection input की bit is 0, तो कौन सी इंफॉर्मेशन आगे जाएगी? Data input I0, क्योंकि decimal equivalent of bit 0, binary 0 is 0, तो I0 पे जोन सी भी बिट आ रही होगी, जोन सी भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो Y पे आएगी। Similarly, if your selection input is 1, then binary number 1 decimal में क्या होता है? 1, so I1 डेटा इनपुट लाइन पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फॉरवर्ड होगी आउटपुट पे, क्योंकि आउटपुट इज अ सिंगल लाइन, सिर्फ इस पे एक ही डेटा
इनपुट की आगे डेटा ट्रांसफर हो सकता है. नाउ 2x1 के मक्स की कॉम्बिनेशनल ब्लॉक डायग्राम इज शोन ओवर हियर. अब ये टेबल मैंने आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी शो किया हुआ है. अभी हम इस पे टेस्ट एंड रन भी करके देखते हैं कि वर्किंग हमारे 2x1 मक्स की क्या है. द कॉम्बिनेशनल सर्किट शोज यू वन इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज अ डिकोडर ब्लॉक ओवर हियर एज यू कैन सी ओवर हियर. और ये किसके साथ अटैच है? सिलेक्शन इनपुट के साथ अटैच है. अगर आपको याद हो 1x2 का डिकोडर जो था वो ऐसा सही था. एक नॉट के साथ गुजरती थी इनपुट और एक सिंपल इनपुट गुजरती थी. वो हमारा सिलेक्शन इनपुट यहाँ हो सकता है, बेशक हो सकता है. क्यों? हाफ ऑफ द टेबल में हमारी सिलेक्शन इनपुट 0 है और रिमेनिंग हाफ में हमारी सिलेक्शन इनपुट 1 है. सो ये डिकोडर से हम आगे जाके ये भी देखेंगे हाउ योर मक्स इज क्रिएटेड फ्रॉम द डिकोडर, लेकिन वो हम लेटर ऑन देखेंगे. अभी आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि इसके अंदर डिकोडर का ब्लॉक भी मौजूद है 1x2 का. नाउ वी विल सी एंड टेस्ट एंड रन कि हमारा सर्किट काम कैसे करता है. ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम मक्स की काम कैसे करती है. There is a block of a decoder. There is an enabling circuit involved over here. This enabling circuit is written over here because there are AND gates involved. ये देखिएगा इस AND gate के साथ I0 connected है, ये डेटा इनपुट लाइन. और इस AND gate के साथ ये I1 connected है, ये I1 हमारी डेटा इनपुट लाइन है. और ये Y हमारी आउटपुट है. और गेट आउटपुट पे क्यों लगा हुआ है? जैसा कि हमें मालूम है दोनों में से जो भी इनेबल करेगा, I0 ने इनेबल होके आगे जाना है तो वो चला जाएगा हर हाल में, और I1 को वो छोड़ देगा. और I1 अगर इनेबल होगा और मतलब I1 ने पास ऑन होना होगा विद रिस्पेक्ट टू माय सिलेक्शन इनपुट तो Y आगे चला जाएगा. दैट इज व्हाई द OR गेट इज कनेक्टेड एट द आउटपुट साइड in our mux. This is the complete combinational diagram of your 2x1 mux. Now test and run करके देख लेते हैं. If my selection input is 0, इधर क्या आ जाएगा? 0 इन्वर्ट होके 0 इन्वर्ट होके मेरे पास 1 आ गया. यहां मेरे पास 0 आ गया. ये देखिएगा 0 इन्वर्ट होके 1 हो गया और ये 0 एज इट इज यहां आगे चला गया. नाउ I0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव मी I0 क्योंकि एंड गेट है, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय I1 चूंकि एंड गेट है. इसकी इस इनपुट पे 0 है, इस पे I1 अटैच है. तो ये इनपुट डेटा इनपुट लाइन कैसे होगी? ऑफ होगी. अब देखिएगा आपको अब मालूम चला कि I1 क्यों ऑफ हो गया अगर सिलेक्शन इनपुट 0 थी. ये देखिएगा I1.0 विल गिव यू 0, I0.1 विल गिव यू I0 क्योंकि I0 का डेटा आगे ट्रांसफर हो जाएगा ना. That is why we call it enabling circuit which enables and pass on the data input line depending on your selection input. ये देखिएगा ये वाली जो आउटपुट आ रही है उसको मैंने D से रिप्रेजेंट किया हुआ है. D.I ये वाली जो आपकी डेटा इनपुट लाइन है उसके अकॉर्डिंगली अगर तो I पिन मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाती है तो आपके पास क्या होगा? अल्टीमेटली आउटपुट 0 होगा. और अगर इनमें से कोई भी पिन 1 हो जाती है इस एंड गेट की तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड हो जाएगी. सो मेरे पास I0 रिसीव हो गया. अब ये बात टेबल की हाफ फुल हो गई. जब मेरे पास S0 है तब तक मेरी I0 की इंफॉर्मेशन आउटपुट पे रिसीव हो जाएगी. ये टेस्ट एंड रन हो गया ये कोड. अब आगे देख लेते हैं. जब S1 हो गया सेकेंड डायग्राम पे तो मेरे पास अब ऊपर वाले की आउटपुट 0 है और नीचे वाले पे आउटपुट 1 आ रही क्योंकि S1 यहां स्ट्रेट अवे आ रहा है ना और यहां से इन्वर्ट होकर आ रहा है. 0.I0 विल गिव मी 0 एंड 1.I1 विल गिव मी I1. I1 प्लस 0 क्योंकि और गेट लगा हुआ है. आउटपुट पे क्या रिसीव हो जाएगा? I1 का डेटा रिसीव होगा हर हाल में. सो हेंस व्हेनेवर माय S सिलेक्शन इनपुट इज 1, so my I1 data is passed on to my output. It is shown over here. टेस्ट एंड रन भी कर लिया हमने इसको. 2x1 मक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x1 मक्स की इक्वेशन बहुत सिंपल है. आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम से ही यू कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ योर 2x1 मक्स. S सिलेक्शन इनपुट S बार, S यहां स्ट्रेट अवे आया, यहां S लेबल हो गया. S बार डॉट I0, S डॉट I1, अल्टीमेटली Y इज इक्वल टू S बार I0 प्लस S इंटू I1. ये आपकी 2x1 मक्स की इक्वेशन है फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम. नेक्स्ट 4x1 मक्स भी देख लेते हैं. 4x1 मक्स में हमारे पास क्या है? 4x1 मक्स में देयर आर 4 इनपुट्स एज द नेम इंप्लाइज एंड 1 आउटपुट लाइन. देयर आर 4 डेटा इनपुट लाइंस एंड 1 आउटपुट लाइन. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट्स आर देयर?